بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان کی اقتدار میں واپسی کے لیے روس، چین، سعودی عرب اور ایران بے تاب کیوں ہیں، اور پاکستان کے یہ دوست ممالک زرداری اور شریف خاندان پر عدم اعتماد کیوں ظاہر کر رہے ہیں، اور پیوٹن نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا بڑا پیغام دیا ہے، یہ ایکسکلوسیو ویڈیو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ بڑی اہم خبریں، بڑی اہم پیش رفت ڈیولپمنٹس آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، یہ جو تاج و تخت کی کشمکش ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اس میں ایک بندہ جو کل تک باغی یا دشمن ہوتا ہے، اچانک بدلتے ہوئے اسٹریٹجک حالات کی وجہ سے ملک کا قانونی حکمران اور انقلابی حکومت کا سربراہ یا بڑا عہدیدار بن جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان ہمیشہ ہی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک باغی اور دشمن رہے گا، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اور سیاست و حکومت کی سائنس اور تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں۔ ابھی 2 روز پہلے افغانستان کی امارات اسلامی کے وزیر داخلہ ملا سراج الدین حقانی نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہے۔ اس 3 روزہ دورے کے دوران امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد اور دیگر اعلیٰ حکام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور طویل ملاقاتیں کیں۔ سراج الدین حقانی کا نام امریکہ کو مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں ٹاپ پر ہے، اور ان کے سر کی قیمت امریکہ نے $1 کروڑ رکھی ہوئی ہے۔ یعنی صرف ان کی کسی خاص جگہ موجودگی کی آپ اطلاع دیں، باقی کام امریکہ ڈرون حملے کے ذریعے خود کرے گا، اور یہ اطلاع دینے والے کو $1 کروڑ یعنی $2.25 ارب سے زائد مالیت کا انعام دیا جائے گا۔ سراج الدین حقانی افغان طالبان کے نائب امیر بھی ہیں اور حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں، جس پر الزام یہ ہے کہ وہ افغانستان میں القاعدہ کا میزبان تھا۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کچھ عرصہ قبل جب ڈرون حملے میں مارے گئے تو اس وقت وہ حقانی نیٹ ورک کے ہی مہمان تھے۔ اسامہ بن لادن بھی جب تک افغانستان میں رہے اور اینڈ تک جب وہ تورا بورا میں تھے، وہ حقانیوں کے ہی مہمان تھے۔ اسامہ بن لادن کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ جب تک افغانستان میں رہے، وہ پہلے جلال الدین حقانی کے اور اس کے بعد سراج الدین حقانی کے مہمان تھے، اور سراج الدین حقانی کا جو متحدہ عرب امارات کا موجودہ دورہ ہے، اس پر امریکہ سخت رد عمل ظاہر کرے گا ایسا خیال کیا جا رہا تھا، لیکن 3 روزہ یہ دورہ مکمل ہو چکا ہے اور ابھی تک امریکہ کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد دراصل امریکہ اور حقانی نیٹ ورک کے درمیان ثالثی کروا رہے ہیں، اور یہ جو دورہ ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، کیونکہ امریکی حکومت چین اور روس کی ایران میں بڑھتی ہوئی دلچسپی اور افغانستان میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور امارات اسلامی افغانستان کے ساتھ گہرے ہوتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات سے بہت پریشان ہیں۔ ناظرین، حکومتوں اور ریاستوں کی پالیسی میں اس طرح کے یو ٹرن کوئی انہونی نہیں، اور کل کا باغی و دشمن آج کا دوست اور حکمران جیسی مثالوں سے یہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ خود پاکستان کی موجودہ حکومت، خاص طور پر نواز شریف اور مریم نواز کا معاملہ سب کو یاد ہوگا کہ بدنام زمانہ ڈان لیکس کے دوران استعمال ہونے والا صحافی سرل المیڈا شاید ابھی تک خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور نون لیگ کی جو اعلیٰ ترین شخصیات ان ڈان لیگز کی اصل ذمہ دار تھیں، وہ نہ صرف وطن واپس آ چکی ہیں بلکہ اسی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے فارم 47 والی
धांधली ज़दा हुकूमत बनाकर उन्हें बरसरे इक़्तिदार लाने का भी एहतमाम कर दिया है, जो डॉन लीग्स के ज़माने में इनके ख़िलाफ़ सख्त आग बगोला थी। इसीलिए वीडियो के आगाज़ में हमने कहा था कि जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अमरीकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात इसी तरह सख्त कशीदा ही रहेंगे, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। कि आप देख सकते हैं कि कल का दहशतगर्द सिराजुद्दीन हक्कानी आज एक सरबराह मुमलकत उसका इस्तकबाल कर रहा है, मुत्तहदा अरब अमारात का सदर, और फिर वो पूरी दुनिया की जो ताकतवर तरीन हस्ती है जो बाइडन, उसके लिए उसके और इस दहशतगर्द के दरमियान सालसी करवाई जा रही है। इसी तरह जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मुजरम था नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ डॉन लीग्स के मुताबिक आज वो शीरो शक्कर हैं। अगर ये लोग शीरो शक्कर हो सकते हैं तो आने वाले कल में क्या इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट शीरो शक्कर नहीं हो सकते? ये अहम इशू है, ये वो पहलू है एक्सक्लूसिव जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आलमी हालात में ऐसी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं कि जिसकी वजह से आने वाले चंद माह के दौरान इमरान खान की वापसी दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, कोई ज़माना था कि जो सियासत और क्रिकेट में बाजी पलटते देर नहीं लगती, ये बहुत मशहूर फिक्रा हुआ करता था। इसलिए अब भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई हुक्मरान कब तक इस्टेब्लिशमेंट का चहीता रहे और कब अचानक दुश्मने अव्वल बन जाए। अगर कारगिल और डॉन लीग्स को भुलाया जा सकता है तो 9 मई भी किसी भी वक्त एक पुरानी बात बन सकती है। ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। अपनी वीडियोज़ में नाज़रीन हम आपको आलमी सियासत और इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक सूरत हाल में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियों की तफसीलात से आगाह करते रहते हैं। जिन दोस्तों ने वो वीडियोस नहीं देखी वो हमारी टाइम लाइन का विज़िट ज़रूर करें ताकि वो हकीकी इंटरनेशनल मामलात से अपडेट हो सकें। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इन हालात व वाक़यात को रिपोर्ट नहीं करता जो पाकिस्तानी हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा पॉलिसियों से मुतसादिम हों और इमरान खान को सपोर्ट कर रही हों, लेकिन हम अपने नाजरीन को ऐसी तमाम तब्दीलियों और अहम डेवलपमेंट से आगाह रखते हैं। इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नाजरीन, वो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, मौजूदा साल 2024 का मौसम गर्मा दुनिया में जारी 2 बड़ी जंगों के बहुत बड़े पैमाने पर फैलाव का बायस बनने वाला है। इसलिए दोनों मुतहारब फरीकों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात दुरुस्त करने में बहुत दिलचस्पी है और यही वो अहम इशू है और यही वो सूरत हाल है जो बड़ी तब्दीली का बायस बनने वाली है पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी। एक तरफ अमेरिका और नेटो ममालिक यूक्रेन को 85 अरब डॉलर जो खरबों रुपए बनते हैं का जदीद तरीन और दूर मार असलहा और मिसाइल फराहम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सदर पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका और नेटो ममालिक के दुश्मनों को दूर मार हाइपरसोनिक मिसाइल फराहम करेगा। इससे मुराद लबनान की हिजबुल्लाह और चीन की हौसी मलेशिया है। अमरीकी व नेटो ममालिक के जदीद दूर मार मिसाइलों और ड्रोन तैयारों की वजह से रूस ने ब्लैक सी में अपने बहरी जहाज़ों को जजीरा नुमा क्रीमिया की बड़ी बंदरगाह से कमोबेश 500 से 1000 किलोमीटर पीछे हटा लिया है, क्योंकि यूक्रेन अमरीकी व नेटो ममालिक की तरफ से मिलने वाले ड्रोन तैयारों और दूर मार मिसाइलों की वजह से रूसी जंगी बहरी जहाज़ों को सख्त नुकसान पहुंचा रहा था। अब जो ही लबनान और यमन में मौजूद हिजबुल्लाह और हौसी मलेशिया को रूस और शुमाली कोरिया ने जदीद तरीन दूर मार हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन फराहम कर दिए, तो बहीरा अरब, बहीरा अहमर और
बहीरा रूम में तैनात अमेरिका व नेटो ममालक के बहरी बेड़ों को पीछे हटना पड़ेगा, जिस तरह रूसी बहरी बेड़ों को ब्लैक सी में पीछे हटना पड़ा है। दूसरी सूरत में उन्हें शदीद नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए ये नुकसान वो अफोर्ड नहीं करेंगे और पीछे हट जाएंगे, जो आलमी स्ट्रेटजिक माहिरीन हैं उनका ये कहना है। ज़राए का दावा ये है कि नादरीन, इस सिलसिले में जून, जुलाई और अगस्त के 3 महीने बहुत अहम हैं और मशरक़ वुस्ता में कशीदगी और हलाकतें अगर बहुत बड़े पैमाने पर हुई तो पूरी दुनिया एक नए तनाव और एक नई सर्द जंग में फंस जाएगी। ज़राए का ये दावा भी है कि सदर पुतिन ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मकबूजा जम्मू व कश्मीर के मसले के आबरूमंदाना हल के हवाले से अहम किरदार अदा करने के साथ साथ पाकिस्तान को सस्ता तेल और सस्ती गंदम का एक ग्रैंड पैकेज पेश किया है और शर्त ये रखी है कि पाकिस्तान में अगले 5 साल के लिए, यानी पूरे 5 साल के लिए एक मजबूत और अच्छी हुकूमत कायम की जाए, जिसका अवाम के साथ भी अच्छा ताल्लुक़ हो और उसकी खारजा पॉलिसी भी है वो भी आज़ादाना हो। और तजवीज़ ये दी है कि मुल्क को मौजूदा सियासी व मुआशी दलदल से निकालने के लिए अगस्त में नए आम इंतखाबात करवा दिए जाएं और फिर इमरान खान का रास्ता ना रोका जाए उन आम इंतखाबात में। इस पेशकश के हवाले से आज़ाद ज़राए से ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। इस पेशकश के हवाले से चूँकि तस्दीक नहीं हो सकी, इसलिए हम सहाफ़ती ज़िम्मेदारी समझते हुए आपको आगाह करना चाहते हैं कि ये ज़राए की खबर है, लेकिन इसकी तस्दीक ताहाल नहीं हुई, लेकिन जो हालात व वाक़यात हैं वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ज़राए का ये भी दावा है नादरीन कि रूस, चीन, ईरान और सऊदी अरब ने हालिया चंद माह के दौरान बार बार ये पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचाया है कि इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार दिया जाए और पाकिस्तान अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट कहने वाली हुकूमत कायम करे, तो पाकिस्तान को दरपेश तमाम मुआशी मसाइल हल करने की जिम्मेदारी फिर इन 4 दोस्त ममालिक की होगी जिनके अभी हमने नाम लिए हैं। नादरीन, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की 2/3 अक्सरियत जो अहम तरीन शख्सियात हैं, इस फार्मूले पर अपनी रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। ये खबर मुख्तलिफ जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो भी दे रहे हैं, हारून रशीद ने भी दे दी है और भी हमारे बहुत से साबर शाकर हैं और दीगर जो प्रो PTI यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ये खबर दी है, क्योंकि ये खबर PTI के ज़राए से ही निकली है कि जो ट्रैक टू मुज़ाकरात PTI की सरकर्दा शख्सियात के साथ हो रहे हैं कि 2/3 जो अक्सरियत है इस्टेब्लिशमेंट की वो इस फार्मूले पर राज़ी हो चुकी है। जो फ्रंट फेस है, जिसे 1/3 आप कह सकते हैं, वो ताहाल कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि अगले चंद माह के दौरान वो भी राज़ी हो सकते हैं, क्योंकि और भी कुछ बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे और वो इमरान खान के लिए समझ लें कि एक खुदाई मदद भी होंगी। नाज़रीन, 100% तक इत्तफ़ाक़ राय तक पहुँचने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को 1.5-2 माह लगते हैं या 3 माह लग जाते हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। नाज़रीन, ये बड़ा पैगाम और बड़ा दावा करने वालों ने कुछ मज़ीद चौंका देने वाले इंकशाफात भी किए हैं। इन ज़राए का दावा है कि ख़ुद शरीफ ख़ानदान और आसिफ ज़रदारी को भी PTI क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट के इन पसे पर्दा राबतों की भिनक पड़ चुकी है और उनकी तरफ से सऊदी अरब, चीन, ईरान और रूस को इशारे दिए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान और PTI के हवाले से जो पेशकशें कर रहे हैं वो पेशकश मौजूदा हुकूमत के हवाले से अगर की जाए तो वो अमेरिका से वफादारी की अपनी मौजूदा पॉलिसी से यू टर्न लेने पर भी तैयार हैं। यानी ये भी लोटे होने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन मसला यह है कि इन पर एतबार कोई नहीं कर रहा, जिस तरह के हमने हेडलाइन में बताया है। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में आसिफ ज़रदारी ने ईरान और रूस में लॉबिंग की है, की जिम्मेदारी उठाई है और ये जो लॉबिंग की है उन्होंने, इस हवाले से नाज़रीन ज़राए का ये कहना है कि वो दुबई में काफ़ी अरसा मुकीम रहे हैं
और वो यही लॉबिंग वहाँ पे कर रहे थे कि ईरानियों के साथ और रूसियों के साथ। और जो शरीफ बरादरान हैं उन्होंने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और चीन में लॉबिंग की जिम्मेदारी ली है। हालिया चंद माह के दौरान शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बैरून मुमालक दौरे और सऊदी वफूद की पाकिस्तान आमद इसी सिलसिले की कड़ी बताई जाती है। बाज़ ज़राए का ये भी कहना है कि कुवैत, ईरान, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात किसी हद तक राज़ी हो चुके हैं कि इमरान खान की वापसी के बड़े झंझट में पड़े बगैर मौजूदा हुकूमत के इस नए बुलाक में आने का खैर मकदम कर लिया जाए। लेकिन सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ज़ाती तौर पर राज़ी नहीं हो रहे। ये तीनों बड़े रहनुमा शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये एतमाद न करने की बड़ी वजह यह है कि इन दोनों ख़ानदानों के अरबों डॉलर के असासे और डॉलर अकाउंट जो गैर मुल्की करेंसी के अकाउंट्स हैं वो मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ अरब ममालिक में भी हैं और यूरोप और अमेरिका में भी बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। और इन अरबों डॉलर के असासों की वजह से जो जरदारी और शरीफ ख़ानदान ने 30-40 साल की अपनी हुकूमतों की कमाई के ज़रिए बनाए हैं, अमेरिका और बरतानिया किसी भी वक्त उन्हें ब्लैकमेल करके अपनी कठपुतली बना सकते हैं। जबकि इमरान खान के किसी किस्म के असासे न तो दुबई और मशरक़ वस्ता में हैं और न ही बरतानिया व अमेरिका में हैं और न ही स्विट्ज़रलैंड में हैं। इसलिए अमेरिका व बरतानिया इमरान खान को किसी तरह ज़ाती तौर पर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। यही वजह है कि रूस, चीन, सऊदी अरब इमरान खान की इक़्तिदार में वापसी के लिए बेताब हैं और ईरान भी इन्हीं में शामिल है। ये तमाम ममालिक समझते हैं कि अगर पाकिस्तान का इक़्तिदार इमरान खान के पास हो तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान भी डट कर नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक की फ्रंट लाइन स्टेट बनकर खड़ा हो सकता है। यूं अमेरिका, बरतानिया और इसराइल की पोजीशन इस खित्ते में बहुत कमज़ोर हो जाएगी और फिर यही वो मौका होगा कि जब रूस और शुमाली कोरिया की तरफ से यमन, जनूबी लबनान, शाम, इराक और लीबिया में सरगर्म ईरानी व रूसी प्रॉक्सीज़ को जदीद हाइपरसोनिक दूर मार मिसाइल फ्राहम कर दिए जाएंगे। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से जब वो सूरत हाल पैदा होगी कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान बड़ा फैसला कर लेंगे नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक के साथ खड़ा होने का, तो रूस और शुमाली कोरिया की तरफ से यमन, जनूबी लबनान, शाम, इराक और लीबिया में सरगर्म ईरानी व रूसी प्रॉक्सीज़ को जदीद हाइपरसोनिक दूर मार मिसाइल फराहम कर दिए जाएंगे और बहीरा अरब, बहीरा अहमर और बहीरा रूम में मौजूद अमरीकी व बरतानवी बहरी बेड़ों और तैयारा बरदार जहाज़ों को फिर 1.5 या 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर पीछे हटना पड़ेगा। ऐसा कहना है अस्करी माहिरीन का और आलमी मीडिया का। नाज़रीन, इसके साथ ही अमेरिका को उर्दन, शाम, इराक, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन और कतर में मौजूद अपने 45,000 फौजियों के हंगामी इनखला का फैसला भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसी सूरत में अगर अमेरिका ये फैसला नहीं करता तो उसे फिर बहुत बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान उठाना पड़ेगा और साथ ही पूरे मशरक़ वस्ता में एक खौफनाक और इंतहाई तबाह कुन जंग भी छेड़ना पड़ेगी, जिसका अमेरिकी व यूरोपीय मईशत पर बहुत ही तबाह कुन असर होगा। इसलिए वो इस जंग के लिए तैयार नहीं हैं। नाज़रीन, दूसरा बड़ा मसला ये है कि अगर अमेरिका, रूस व ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं उनके खिलाफ मशरक़ वस्ता में बड़ी जंग छेड़ता है तो फिर यूक्रेन और ताइवान के जो महाज हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और फिर ये ख़तरा पैदा हो जाएगा
کہ امریکہ اور نیٹو ممالک کو مشرق وسطی میں الجھا کر روس یوکرین کو اور چین تائیوان کو ہڑپ کر لے گا۔ اسی لیے جہاں دیدہ اسٹریٹجک ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ اور برطانیہ مشرق وسطی میں کسی بھی قیمت پر بڑی جنگ نہیں چھیڑیں گے، اور جس طرح امریکہ و یورپ کی طرف سے یوکرین کو فراہم کیے گئے دور مار جدید میزائلوں اور ڈرون طیاروں کی وجہ سے روس نے اپنے جنگی بیڑے میں شامل زیادہ تر جہازوں کو بلیک سی میں 1000 کلومیٹر پیچھے کی طرف منتقل کر لیا ہے، اسی طرح امریکہ، برطانیہ اور فرانس بھی بحیرہ احمر، بحیرہ روم اور بحیرہ عرب میں موجود اپنے جنگی بیڑوں میں شامل مختلف بحری جہازوں اور طیارہ بردار جہازوں کو 1000 سے 1500 کلومیٹر تک پیچھے منتقل کر لیں گے، اور مشرق وسطی کے ممالک میں موجود امریکی فوج بھی انخلا پر مجبور ہو جائے گی۔ ناظرین، یہی وہ وقت ہوگا کہ پھر جب ایران، عرب ممالک، ترکی اور پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کر کے نئے اسٹریٹجک بلاک کو جوائن کر لیں گے اور روس و چین سے بڑے پیمانے پر تجارت بھی بڑھائیں گے، اور سی پیک بھی آزادانہ طور پر حقیقی معنوں میں فنکشنل ہو جائے گا۔ ناظرین، صدر پیوٹن نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس پورے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے اور اس اسٹریٹجک جو پیش رفت اگلے چند ماہ کے دوران ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے بڑا اہم پیغام بھجوایا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اسی لیے اس کو ہم نے ہیڈ لائن بنایا، جس کی وجہ سے 2/3 سے زیادہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کو واپس لانے پر تیار ہو چکی ہے۔ اس واپسی کے لیے فارم 45 والا راستہ استعمال کیا جاتا ہے یا نئے عام انتخابات کروائے جاتے ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ معاملات بڑی تیزی سے ایک نئی کروٹ لینے والے ہیں، اور دعا کریں کہ یہ جو بیل ہے مڈھے چڑھ جائے۔ اجازت دیجیے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔